Hello everyone. We just saw in our last lecture strategic management. Okay. Today our topic is strategic formulation. So starting with new chapter, strategic formulation. So strategic formulation is a creative and analytical process because function and perform in a sequential orders in order to arrive at the right decision about the formulation of strategy, and a number of activities are involved. Hence, strategy formulation is concerned with the development of an organization, mission, objective, strategy, and the policies. Strategy analysis is sometimes is called mapping the business landscape. So mapping means point of important, highlight the important point in the business in strategy. The effectiveness of strategy management is determined by the effectiveness of strategy that managers work out. The real issue of involved is whatever strategy would be lead to achievement of objective, and strategy provide the direction to achieve the objective strategy, provide the balance between the organization and environment. Okay, so we need to compare compare or taking the decision of the two steps. We need to calculate the balance between the environment also and our organization also. Means even our objective need to provide full balancely. Strategy formulation involve performing environment and organization appraisal. The strategy are required to undertake the strategy analyze by considering the corporate level and the business level strategy. The strategy prepare the strategy plans also exercise and strategic choice. Strategic formulation involves sizing up of the situation of the business on the basis of working of functional department. Strategy formulation, develop line, and the action of covering and the various activities like company and the light of business of, and in order to formulate effectiveness strategy, management, analyze organization competitive position. This is done by the taking into account internal and external environment factor. So strategy formulation in event driven it flexible, creative, innovative, and adapting nature. It does not work on the specific type of program. So strategy management as a providing the most important thing is flexible. We provide any flexible. If it changes in environment, we need to change our policy also. Not directly changing your policy, but at least we need, suppose I'm giving an example. Right now situation is Corona time. So most of people or most of companies providing policy, if you are purchase any dress, they give you free mask. Why? They using the new technique or new environment. If environment has changed, policy also they doing the change. सपोज कोई इन्वायरमेंट की पॉलिसी बदलती है, कैसी बदलती है? इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलती है। सही है, कैसे बदलेंगे इसके अंदर कि हम हमें अभी देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या, हमें कोई भी पॉलिसी नहीं आने से पहले हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं। ठीक है, अभी कोई भी एक ड्रेस मटेरियल की कंपनी लीजिए या कोई शॉप लीजिए, वो क्या करती है, लोगों को इन्वायरमेंट के सबसे पॉलिसी क्या चेंज की और डिस्काउंट नहीं देती, उन लोग क्या देते हैं, उसके ऊपर फ्री मार्क्स देते हैं। मतलब जैसे इन्वायरमेंट के अंदर पॉलिसी चेंज हुई, उन्होंने क्या किया, आपने भी इन्वायरमेंट उस हिसाब से चेंज किया और वो पॉलिसी के अंदर उन्होंने क्या किया, जहाँ पे वो डिस्काउंट दे रहे थे अभी वो फ्री मार्क्स दे रहे हैं। तो यह है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के अंदर क्या स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में फॉर्मुलेट करना है, सिर्फ बनाना नहीं। जो डिफरेंट लेवल के चैलेंजेस है वो भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि आप एक्सेप्ट करो। इसके अंदर एक रिस्क टेकर मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ही आप आगे जाके बिजनेस कर सकते हैं। So the next point is to analyze the environment. A business organization is the creation of its environment. It is continuously influenced by environmental factor. The environment in which the organization operates in is subject to continuous changes. Whatever the change is place of environment influence the functioning of the business in the different ways. So the strategic must be constantly analyze environmental factor to forecast in advance the changes in environment. This analysis will be help the organization to profit from opportunity and the threats effectively. Nowadays, changes in the business environment became faster and more complex. Business will be required imaginating and initiatives strategies to survive the growth. देखिए हर एक बिजनेस के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सर्वाइव करना पड़ता है। सही है, तो हमें हर एक बिजनेस चालू करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एनालाइज करना पड़ता है, उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्या कि कौन सी डिमांड कहाँ ज़्यादा है। ठीक है, अगर हमारा कोई एक बिजनेस सेट हो और अगर हमें वहाँ पे दूसरा बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ की स्टडी करनी पड़ेगी, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें वैसे स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके अंदर क्या बताया गया है कि अगर हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं और उसके साथ हमें अगर कोई सेकंड बिजनेस रन करना है, देखिए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, उसके अंदर हमें क्या करना है, दूसरा अगर कोई बिजनेस रन करना है तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे वहाँ पे कि कौन सी डिमांड कहाँ ज़्यादा है। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए अगर और इसके अंदर क्या होता है कि एक साथ अगर एक चेन एक वक्त काम कर रहा है तो दोनों चेन को साथ में मिला के बैलेंस
मेंटेन रखना पड़ता है, उसी हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, वो काम करना पड़ता है। देखिए अगर आप थिएटर में जाती है तो वो थिएटर वाला सिर्फ मतलब मूवी नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे कैफे भी हो सकता है, ठीक है, या वहाँ पे पॉपकॉर्न मतलब सॉरी सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब मिलता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसने क्या किया कि दोनों मेंटेन किया है, ठीक है। तो उसी हिसाब से क्या किया, उन्होंने एनालाइज किया कि अगर यहाँ पे मूवी देखने लोग आते हैं, वहाँ पे भीड़ रहती है, तो सेकंड थिंग मेरा जो बिजनेस है वो इजीली रन होगा, ठीक है। तो आप देखते हैं कि वो क्या करते हैं, एक साथ वो दोनों बिजनेस को रन कर पाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज टू डिटरमाइन क्वांटिटेटिव टारगेट्स। Companies mostly prepare quantitative target because they are easy to measure and target. Companies mostly prepare quantitative target because they are easy to measure and the variety of against the objective. Such targets are determined either in terms of rupees or units. Relevant strategies are formulated to achieve the targets. Example: marketing department has a target fixed in terms of rupees. Every effort is made to achieve the target because it brings revenue to the business. From any reason, it target to not achieve on this result in the serious discoloration of the business of activities. Knowing this well, the advance in the strategy, prepared on strategy to keep the business profitable. देखिए इसके अंदर क्या होता है कि हमें क्या करना है, रुपीज को क्या करके टारगेट बना के सेट करके हमें चलना है, मतलब क्या हम रुपीज कन्वर्ट कर सके। जैसे कि देखिए बीच में एक आया था कि आप कोई एक प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके साथ आपको क्या होगा, अब आपको दोनों को आगे दो लोग को कन्विंस करके वो प्रोडक्ट उनको परचेज करने लगाना होगा, और उन दोनों ने परचेज किया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, एक चेन हमने चेन चालू की थी कि अगर आगे कोई दो लोग परचेज करते तो हमें क्या होगा, उसका प्रॉफिट हमें होगा। उसी हिसाब से कहेंगे हमें क्वांटिटी टारगेट, जो हमारा टारगेट है हम इजीली अचीव कर सके, ऐसे हमें देखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज टू लिंक विद द functional plans. इसके अंदर क्या होता है, it is desirable to prepare separate strategies of each major functions of the organizations such as marketing, finance and production, human resource and research and development, etc. Consider for instance strategy formulation for the department of marketing. One strategy is prepared for the entire marketing department and another strategy is prepared for marketing personal sellers and the like sales promotions plans or conducting the marketing research. The different strategies are prepared with the framework or organization strategy. देखिए इसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर हम जो बिजनेस सेट करें उससे सबसे मतलब डिफरेंट लेवल में हमें क्या करना है, इसे काम करना है, ठीक है। मतलब क्या होता है इसके अंदर कि देखिए अगर अगर आप LIC कंपनी का एग्जांपल लीजिए, LIC कंपनी क्या करती है, उनका मेन मोटो क्या रहता है कि लोगों से पैसे लेना, उन्हें पैसे देना। लेकिन यही सब, लेकिन उन्होंने क्या किया इसके अंदर, उन्होंने 4 डिपार्टमेंट के अलग डिपार्टमेंट लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, अलग होता है। जैसे कि कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जीवन बीमा और क्या है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। मतलब क्या उनका जो काम क्या है, एक अगर सिर्फ एक ही मोटो रहेगा कि पैसे लेना और पैसे देना, तो क्या होगा, कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। लेकिन उन्होंने क्या बताया कि इसके अंदर भी उन्होंने डिपार्टमेंट किए, वो डिपार्टमेंट के हिसाब से उन्होंने क्या फंक्शन प्लान, अलग अलग प्लानिंग पर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। उसी हिसाब से क्या होगा, अगर किसी को कार इंश्योरेंस करवाना होगा तो उस डिपार्टमेंट जाके कार इंश्योरेंस कर सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो हेल्थ इंश्योरेंस कर सकता है। मतलब हर एक प्लानिंग के ऊपर उन्होंने क्या किया, अपना सब स्ट्रेटेजी सेट की, जिसके ऊपर हम वो लोग क्या करते हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स है, जो इंश्योरेंस है, क्या करते हैं, लोगों को सेल करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज टू कंडक्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनालाइज। इसके अंदर क्या है, द परफॉर्मेंस एनालाइज टू इंडिकेट and difference between a desired and actual state of the office. Performance analysis may be represent problems to the resolve or opportunities to be taken advance of the strategies are expected to prepare such strategy that will take action in the present to improve functional organization performance. Past performance is good indicator to display how strategy fared and areas requiring improvement and how strategies fared, and after that it's possible to find out the strength of the sum of the strategies and that brought of the good result. इसके अंदर उन्होंने क्या बताया, देखिए कि सबसे पहले क्या करना है, हमें प्लान के हिसाब से क्या करना है, अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी चाहिए कि जो हमें प्रॉफिट दे सके, जैसे कि, और उसके साथ हमारा क्या होगा कि हमें हमें जिससे हमें इनकम कम हो उसमें हमें इनकम ज्यादा देखना है। जैसा कि देखिए अगर आप संडे के दिन मूवी के लिए जाते हैं तो उनको पता है कि इस दिन हमें प्रॉफिट होने वाला है, तो ऐसे वो स्ट्रेटेजी कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं बनाते। लेकिन आप ऑफ डे, मतलब आप हॉलीडेज हो गए, मंडे के दिन मूवी के लिए जाते हो तो उसके अंदर क्या होगा, आपको कोई टिकट कम प्राइस में मिलती है, क्यों, मतलब उसको एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमें इस दिन में हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सेल करना है और हमें प्रॉफिट, उसके अंदर प्रॉफिट बनाना है।
तो उनकी स्ट्रेटेजी ऐसी रहती है कि मंडे ट्यूसडे उन लोग क्या करते हैं कि और जो टिकट्स है जो हॉलीडेज है मतलब उसके अंदर क्या कहते हैं जो देते हैं टिकट्स वो कम रखते हैं, उससे उसकी प्राइस कम रखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज टू मेक द राइट चॉइस ऑफ द स्ट्रेटेजी. The choice of strategy must consider the organization ability to implement strategy must take into action elements like process, skill, people and culture of the organization. They way a lion jump and runs a cat cannot be a common error in the strategy formulation and relate the educate and the attention of the paid of the limitation of business strategy. One choose should such be such as the organization is able to implement it. इसके अंदर मुझे क्या पता है कि अगर हमें सबसे पहले क्या करना है कि अगर हमारा छोटा ब्रांड है, ठीक है, हमें कोई छोटा ब्रांड निकाला और उसके अंदर हमें उसका सेल ज्यादा लेना है, उसका सेल ज्यादा करना है, तो हम प्रमोशन किसी बिग एक्टर से करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर सारा प्रमोशन में चला गया पैसा तो हमें जो प्रॉफिट होने वाला है उतना भी प्रॉफिट हम नहीं ले पाएंगे। तो क्या करेंगे? हमारी स्ट्रॅटेजी हमारा सो इस पॉइंट में क्या बताया गया है की एखादा जर लहान आपला ब्रँड असेल, ठीक आहे, त्याचं आपण प्रमोशन करतोय, एखादी लहान वस्तू आपण मार्केटमध्ये आणली, ठीक आहे, किंवा एखादी वस्तू आपण मार्केटमध्ये आपण पहिलं न्यू प्रोडक्शन त्याचं आपण लॉन्च करतोय, तर ती एक ऍड आपण मोठ्या सुपरस्टारकडून करून घेऊ शकतो का? कारण त्याला जो लागला तो प्रमोशनचा खर्च आहे तो आपण सगळं त्याच्यामध्ये आपण टाकला, तर ऍक्टर किंवा ऍक्ट्रेसला आपण तो खर्च दिला, तर कदाचित जेवढं आपलं बजेटने त्याच्यापेक्षा खर्च झाला तर आपण त्याच्यामध्ये सुरुवातीला नुकसान होऊ शकतं, बरोबर आहे. मग असं अशा टायमात काय करणार आपण? सुरुवातीला काय करतो, कोणती स्ट्रॅटेजी वापरतो की ती नवीन आपण पेपरमध्ये ऍड देतो नवीन वस्तूबद्दल, ठीक आहे. म्हणजेच काय की कमी पैशात आपण काय करतो, त्याचं प्रमोशन करतो, बरोबर आहे. एखादे एक्झाम्पल घ्या ट्रेंड्स मध्ये, जसं आता चिपळूणमध्ये ट्रेंड्स उघडले, आता हे एक मोठं शॉप आहे, बरोबर आहे. तिथे तुम्हाला काय प्रोव्हाइड करतात, तिथे पूर्ण एसी आहे, बरोबर आहे, पूर्ण फ्लोअरवरती, बरोबर आहे. काही प्रमाणात बाय वन गेट वन डिस्काउंट सुद्धा देतात, ही त्यांची स्ट्रॅटेजी असते. मग तुम्ही अशाच एक दुसऱ्या लहान कपड्या दुकानामध्ये गेलात ज्यांचं बिझनेस लहान आहे, ते तुम्हाला असं प्रोव्हाइड करतील का? नाही. कारण का बोलतात ना की जेवढा मोठा बिझनेस तेवढी मोठी स्ट्रॅटेजी असते. ओके. जर एखादा जर लहान बिझनेस करत असेल त्याची स्ट्रॅटेजी कशी असणार आहे? लहान असणार आहे. तेच ह्या पॉईंट मध्ये सांगितलंय की जसे लायन एक मोठी स्टेप घेतो, मोठी जंप घेतो, त्याप्रमाणे कॅट घेऊ शकते का? नाही घेणार, बरोबर आहे. म्हणजेच काय करायचं की जेवढं आपलं बजेट असेल, जेवढे आपले बिझनेस त्यानुसार आपल्याला काय करायचंय, लहान लहान स्टेप घेऊन आपल्याला काय करायचंय पुढे. सो नेक्स्ट पॉइंट इज environmental analysis. Environmental analysis is the process by which organizations keep track of relevant environment in order to identify opportunity and threats influencing their business. The organization single out of the most important factor present in the environment which will be achieve the objective in the words. The purpose of environment analysis identify the ways in which changes on organization economic, technological, social, cultural, political, and legal environment can identify influence the organization and the ways competition, supplier, customers, government, agencies, and other directly influence it. After that, the environmental analysis is also called environmental scanning. It serves different purpose. A number of analytical systems may be required to achieve this different purpose. Environmental analysis must be linked into current planning of operations. It must fit into the cultural and decision making in the organization. देखिए इसके अंदर क्या बताया गया कि इन्वायरमेंटल एनालिसिस क्यों जरूरी है? देखिए हम कोई भी अगर नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएंगे, सही है। वो स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे? हम इन्वायरमेंट का एनालाइज करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। ठीक है, हमें अगर एक एग्जांपल दिया मैंने कि अगर मैंने विलेज में कोई बड़ा शॉप जैसे कि फोसिल, अरमानी वॉचेस का कोई बड़ा शॉप डाला तो वहां पे मुझे सबसे ज्यादा डिमांड होगी क्या? नहीं होगी। लेकिन वही शॉप अगर मैं मुंबई या कहीं दिल्ली जैसे बिग सिटी में जहाँ पे डालता हूँ तो वहाँ क्या होगा, मुझे सेल भी अच्छा होगा। मतलब क्या है, हमें इन्वायरमेंट से हिसाब से हमें जहाँ पे जिसकी डिमांड ज्यादा है उसी से हमें क्या करना है, स्ट्रेटेजी बनाना है और हमारा बिजनेस सेट करना है, ठीक है। सो ये होता है इन्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर कि अगर जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले कि फर्स्ट पार्ट के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हम कोई भी स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्लान बनाते हैं उसके लिए, ठीक है। प्लान बनाने के बाद क्या करते हैं, हम हमारे क्या करते हैं, हम मिशन सेट करते हैं और हमारा विजन सेट करते हैं। उसी तरह हमें इसके अंदर भी करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि सबसे ज्यादा हमारे सेल कहाँ मिलेगा, हम अगर बिजनेस करते हैं तो हमें आगे जाके प्रॉफिट कहाँ होगा, यही देखना है हमें इस इन्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था कि स्कैमिंग करना मतलब क्या, कि देखरेख रखना हर एक चीज के ऊपर, पूरा मतलब कॉन्सेंट्रेट करना कि कहाँ से हमें प्रॉफिट आ सकता है। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा रहेगा एग्जांपल कि सीसीटीवी कहाँ पे जाते हैं तो सीसीटीवी क्या रहता है, सर्विलेंस रहता है।
उसी तरह के हम क्या करते हैं, कैसी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, किसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसका हमें क्या रखना है, रिव्यू रखना चाहिए, देखना चाहिए कि हम कैसा बराबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो इन्वायरमेंटल एनालिसिस ये बताता है कि आप पहले स्टडी करो, उसके बाद में क्या करो, आप अपना बिजनेस सेट करो। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल उन्होंने बताया कि हेल्प टेक्नोलॉजिकल है, सोशल कल्चर है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या बताया तो इकोनॉमिकल है। उसके हिसाब से क्या करना है आपको, आपका इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे होता है कि लीगल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, सोशल कल्चर मतलब क्या, जैसे कि मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल बताया था कि जहाँ पे ट्रेडिशनल कपड़ों की ज्यादा, ट्रेडिशनल कपड़े के जहाँ पे ज्यादा जरूरत है, वो आप अभी वेस्टर्न बेच सकते हैं क्या, नहीं, मतलब कि उसी हिसाब से आपको इन्वायरमेंट बनाना होगा, उसी हिसाब से आपको क्या करना होगा, आपका बिजनेस सेट करना होगा। एक ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट मतलब क्या, अभी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी कैसी है, इनोवेट हो रही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको आपको आपका बिजनेस सेट करना होगा और चेंजेस करने होंगे उसके अंदर। अगर मैं वही फोन जो 1100 अभी बेचने निकलूं, तो ज्यादा लोग प्रेफर करेंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि अभी क्या है, स्क्रीन टच, जो लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं वो ऐसा फोन अब नहीं यूज करेंगे। मतलब क्या, हमें जैसा जैसे जैसा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से हमारे बिजनेस में हमें क्या करना है, चेंज करना है। यही बताता है इन्वायरमेंट। So under economic analysis come economic environment. So inflation income. So economic environment is taken inflation, income levels, gross domestic product, unemployment, job opportunity, income distribution, saving, credit, ability, etc. After that, social culture environment, the part of domestic patterns, education, human rights, norms, customers, and social value of etc. The legal political environments undercome political parties running the government of laws and the government regulation, government's attitude towards business and industry, etc. After that, the natural environment. In the natural environments undercome public concern expressed through environmental and pollution level, ecological balance, etc. Actually, the environmental concept is environmental analysis identify the indicate of environmental changes and issues. The environmental needs to be analyzed on the regular basis. Environmental analysis prepare the organization phase of the outlet of the external changes. Successful environmental analysis point of possible changes and events before they take. So our next point is importance of environmental analysis. The first point, continuous process. Environmental analysis, an ongoing process. It enables the organization to develop new trends. These trends can be evaluated in the light of organization and requirements. Changes in the environment keep taking place. Business has to adopt these changes so as the remain competitive and the market inward. जैसे कि मैंने आपको लास्ट पॉइंट के अंदर कहा था कि इन्वायरमेंटल एनालिसिस, इन्वायरमेंटल स्टडी, ये एक मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको बीच में स्टॉप नहीं करना है। अगर बीच में स्टॉप किए तो हमने जो स्टडी किए, हमने जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए, वो क्या होगा, उस पर कहीं खलल पड़ेगा, मतलब का मिस हो सकती है। अगर वो मिस होगी तो हमारे जो आगे के प्लान है वो हम सक्सेस नहीं कर पाएंगे। सही है। सो इन्वायरमेंटल एनालिसिस इसलिए जरूरी है कि हम जैसे हिसाब से हम स्टडी करते हैं मार्केट की, तो मार्केट में कैसे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हर हर दिन हर 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 समय कुछ इनोवेट हो रहता है, चेंजेस हो रहता है। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, इन्वायरमेंटल सॉरी हाँ यस एनालिसिस करना है। इन्वायरमेंटल क्या करना है, हमें एनालिसिस करना है। सही है। सो जैसे कि मैंने बताया था अभी कि अगर हमने हमारी इन्वायरमेंटल स्टडी परफेक्ट होगी, तो जो मार्केट में फ्यूचर में चेंजेस होने वाले हैं उसके लिए हम प्रिपेयर रहेंगे और हमें पता होगा कि हम क्या चेंजेस हो सकते हैं। उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, हम हमारा जो प्लान है और उसी हिसाब से हम रेडी रखेंगे। ठीक है। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि रिलायंस टेलीकॉम, सबसे पहले रिलायंस का भी एक सिम कार्ड था बहुत साल पहले। तो उन लोग क्या करते थे कि जैसे बाकी ये कस्टमर सर्विस देते हैं, एयरटेल, वोडाफोन, उन लोग भी उसी तरह सर्विस देते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्वायरमेंटल स्टडी किया कि लोगों का जो अभी ज्यादा से ज्यादा जो इम्पोर्टेंस जो है वो नेट के लिए जा रहा है, मतलब लोग नेट ज्यादा यूज कर रहे हैं मोबाइल के अंदर। जैसे जैसे स्मार्टफोन आने लगे वैसे वैसे क्या क्या मोबाइल मोबाइल के अंदर नेट का भी यूज ज्यादा हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्वायरमेंटल स्टडी की और उसके हिसाब से उन्होंने जियो लॉन्च किया। तो उन्होंने क्या प्लान दिया कस्टमर को कि सब फ्री नेट, फ्री सिम कार्ड। सो उसकी वजह से क्या हो गया, कस्टमर इंटरेक्ट हो गए, मतलब इन्वायरमेंट जैसे इन्वायरमेंट को जो इम्पोर्टेंट थिंग थी वो उनको उनको पता चली कि कस्टमर आगे को जाके लोगों को क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, वैसी तैयारी की। ठीक है। तो उसके हिसाब से भी क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अब लीडिंग जो है कंपनी है वो जियो है सबसे पहले। सही है। उसी तरह अमेजोन, अभी सब जैसे अमेजोन का भी सेल उसी तरह होता है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के बारे में।
सबसे पहले अमेजोन ने शुरू किया, फिर बाकी के साथ उनके साथ बाकी कंपनी जुड़ गई, मतलब बाकी कंपनी आ गई उसके बाद। तो जैसे मतलब लोगों को पता चला कि अगर हमारा टाइम सेव जहाँ होता है, नेट आया, टाइम जहाँ सेव होता है, तो हम ऑनलाइन प्रोडक्ट घर पे मंगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से बाकी की भी क्या कंपनी नहीं वैसे चल गए। मतलब क्या किया कि सबसे पहले इन्वायरमेंट स्टडी किया कि कौन सी जरूरत कहाँ है और कब है। अगर हमारा एनवायरमेंटल स्टडी परफेक्ट होगा तो हमें आगे जाके वैसे ही पता चलेगा कि क्या चेंजेस होने वाले हैं, उसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो ये है पॉइंट कंटिन्यूस प्रोसेस के बारे में। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, एनवायरमेंटल एनालिसिस इज एन एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस बिकॉज इज नॉट ओनली कंसिडर द प्रोसेस सिनेरियो ऑफ डेवलपमेंट बट ऑल्सो टेक into account take into account the different dimension of the future, and the analysis will be access the result to establish of conclusion drawn their contract। इसके अंदर क्या होता है, एनालिसिस सॉरी एक्सप्लोरटरी प्रोसेस, इसका मतलब क्या होता है कि सर्चिंग, सर्च करना। क्या सर्च करना कि आगे जाके कौन सी चीज को इंपॉर्टेंस ज्यादा आने वाला है। ये कब पता चलेगा, जब हमारी एनवायरमेंटल स्टडीज बराबर होगी, हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस चालू रहेंगी, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया। तो जब हम कंटिन्यूस सर्चिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आगे जाके कहाँ पे स्कोप आ सकता है। जैसे कि देखिए बहुत सारे पहले लोगों ने क्या किया था, रोड के पास लैंड खरीद गई थी, उनको पता था कि आगे जाके फ्यूचर में क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो जैसे भी 4 वे आया, उसकी लैंड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। मतलब वही होता है कि सर्च करना की इंफॉर्मेशन कि आगे जाके कहाँ पे सबसे ज्यादा हमें इंपॉर्टेंस आने वाली, कहाँ पे हम ज्यादा पैसा बना सकते हैं, कहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, उसके बारे में पहले से ही थिंक करना, स्टडी करना, एनालाइज करना। So next point is useful exercise. So environmental analysis is of great utility of the organization because it's pinpoint of threats likely damage and the business of unable manage of introduce the counter of measure of nullify its effects. So what is meant by the nullify? Nullify means the loss no profit. ठीक है, ऐसा ऐसा चीज कि उसके अंदर हमें प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए और लॉस भी नहीं होना चाहिए। इसके पॉइंट के अंदर क्या बताया गया हमें कि अगर हम इन्वायरमेंट की स्टडी एनालिसिस बरोबर करते हैं तो हमें जो फ्यूचर में थ्रेट्स आने वाले, धोखे आने वाले, उससे हमें अब पहले ही पता चलेगा कि किसके अंदर हमें लॉस होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी स्टडी प्रॉपर रहेगी तो जो होने वाला लॉस है हम उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे ये पॉइंट से अंदर पता चलता है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए और लॉस भी नहीं होना चाहिए। एक ऐसे होगा, एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी रेनी सीजन है, बहुत सारे शॉप के अंदर जो जो लोग शॉप चले उसके अंदर मतलब फ्लड आ सकता है, जो नुकसान हो सकता है। तो उन लोग क्या करते हैं ऐसे टाइम पे, वो अपनी हर एक चीज, जैसे अगर उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ गया या कोई प्रॉब्लम हो गया तो उनको लॉस लॉस होगा, उनको पता है कि लॉस होगा। लेकिन वो कैसे रहता है, एक स्टडी रहती है इन्वायरमेंट के हिसाब से। अगर हमने प्रॉपर स्टडी करते हैं उसके बारे में तो लोगों को वो चीज चाहिए, लेकिन क्या उसकी डिमांड आएंगी लोगों के अंदर कि कम दाम में मिलने चाहिए। तो उन लोग क्या करेंगे, उसको सेल रखेंगे और उनको उसको क्या करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं रखेंगे उसके ऊपर, कम से कम प्रॉफिट के अंदर वो क्या करेंगे, लोगों को सेल करेंगे। मतलब क्या होता है कि जो चीज अभी चालू है मार्केट के अंदर, करंट सिचुएशन में लोगों की डिमांड है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो उन लोग कम प्राइस में बेचेंगे लेकिन वो अपना प्रोडक्ट क्या करेंगे, सेल कर पाएंगे। तो यही होता है इसके अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलाइज अपॉर्चुनिटी। इस पॉइंट के अंदर देखिए क्या बताया उन्होंने कि हमें फ्यूचर में सबसे ज्यादा कौन सी चीज की जरूरत होगी, हमें कैसे पता चलेगा। सो इसका जॉब ये है कि इन्वायरमेंटल एनालिसिस के हिसाब से, जैसे कि a study of environmental analysis reveals opportunities available, how use them in benefit the business. Hence, Indian business has unique opportunity to respond to consumers making available goods and services. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले हमें फ्यूचर में जाके कौन सी चीज की जरूरत ज्यादा होगी, कौन सी अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर पाएंगे इसके अंदर, या हमें पता चलेगा हमारे इसके सॉरी इन्वायरमेंटल एनालिसिस के हिसाब से। ठीक है, तो जब हमारे एनालिसिस सही होगी, स्टडी सही होगी, तब हम क्या करेंगे, प्रॉपर प्लान हमारे क्या करेंगे, सेट कर पाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल एक्सेप्टिंग। इसके अंदर क्या है कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है कि कंज्यूमर को सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट पसंद है, कौन सा ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा रन हो रहा है बिजनेस के अंदर, ये देखना है। ठीक है, और सबसे पहले उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो हमें क्या करना है, उसी हिसाब से हमें क्या करना है, प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। तो ये कब पता चलेगा कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाई है, कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर को लाइक सबसे ज्यादा पसंद करता है कस्टमर खरीदने के लिए, ये होगा इन्वायरमेंट के स्टडी के हिसाब से, मार्केट स्टडी के हिसाब से। ठीक है, सो इसके अंदर क्या बताया, इन्वायरमेंटल एनालिसिस गाइड्स ऑफ बिजनेस बिकम कंज्यूमर ओरिएंटेड इन ऑर्डर टू अचीव द फास्ट ऑफ बिजनेस मस्ट adopt in diversified social groups. And most important thing, the customer satisfaction is very important if you are selling of goods and services. Okay, उसके बाद में क्या बताया इस पॉइंट के अंदर
नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है इसका एडॉप फोरकास्टिंग। सो एडॉप फोरकास्टिंग मतलब क्या, कि हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से, वो हमें क्या करना है, लोगों तक पहुंचाना है, लोगों तक बताना है। ठीक है, अभी हमने हमने स्कूल चालू किए, स्कूल के अंदर हमने ई लर्निंग हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि ये लोगों तक एक पहुंचना चाहिए ये बात, कि हम लोग कैसे लोगों, मतलब बच्चों को हम स्टडी उनकी स्टडी करके ले रहे हैं, उनका कैसा काम कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचाना होगा। ठीक है, so one of the major contribution of the environmental analysis is that make a way to use forecasting. Forecasting is exercise of estimate to events of the future based on the analysis of past or present situation. With the help of forecasting, the business is better prepared to present future proportion of the alternative plans and tell of every person in order to make forecasting reliable to the desirable of use satisfaction of techniques. इसके अंदर उन्होंने क्या बताया है कि हर एक प्रोडक्ट, जैसे कि हर एक कोई नया प्रोडक्ट आता है मार्केट के अंदर, तो हम क्या करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके ऐड करते हैं। सही, तो उसी तरह हमें क्या करना है कि लोगों तक बताना है कि हमने क्या किया, क्या चेंजेस किए इन्वायरमेंट के हिसाब से, या हमें क्या करना है, लोगों तक हमें ये पहुंचाना है। सो नेक्स्ट पॉइंट, so last point is head of monitoring. Environmental analysis enable the organization to monitor prevailing trends in the market. The main purpose of the monitor to organize the data to see clearly whatever certain trends are developing, and monitor help to convert instead of the extract facilitating interpretation of data and monitoring desirable environmental trends and identify areas of future analysis and accepting people. इसके अंदर क्या बताया उन्होंने, कि जैसे कि हमने बताया कि हमने जो इन्वायरमेंट के हिसाब से जो चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस करने के बाद लोग कितना उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोगों को कितनी हेल्प हो पा रही है, ये इस पॉइंट के अंदर आया है। कि अगर हम सिर्फ चेंजेस किए और लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किए, तो क्या होगा कि हमने जो स्टडी की है उसके बारे में हमारा जो प्लान है, वो हमारा प्लान अनसक्सेसफुल होगा। तो उसके हिसाब से हमारे चेंजेस जैसे लोगों तक गए, जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट में बताया था कि हमने फोरकास्ट किया है, फोरकास्टिंग किया है, लोगों को बताया है, तो लोग उसके उससे हैप्पी है क्या, उसके लोगों को हेल्प हो रही है क्या। ठीक है, यही पॉइंट के अंदर ये आया है।